Let me check online hoji nahi. Then we'll start. Give me 1 to 2 seconds. Starting. Yeah, it started. Okay. କିଛି ପିଲା ମାସେ ୱେଟ୍ କରିବା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଟିକେ we have to wait. So last class ରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ମ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା and with there are some question about interior of the earth ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଆଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମିକ୍ସ ଭେରିଏଣ୍ଟ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ତା ସହିତ ଆଜି ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଆଉ ତମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଦିଆ ହେଇଛି ହୋପଫୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ପ ହବ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ let's start. Give me 1 second. We have to share the class with everybody. Uh, Give it 1 to 2 seconds. Yeah, good to go. Let's start. Uh, yeah. Later होची class but don't worry. ଆମେ ସାରିଦବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରିଦବା ତା ଭିତରେ. Good evening, Shakti Prasad. Okay, ଏବେ ଟିକେ ଆମର question ଉପରେ focus କରିବା. Okay, so which of the following is an example of a second order landform? So ଆମେ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ତିନି ପ୍ରକାର landform ଅଛି. Okay, ମୁଁ ଟିକେ question ସହିତ ତା related question ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଦଉଛି. ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର landform ଅଛି. ଗୋଟେ ହେଲା first order, ये ହେଲା large scale ରେ ଅଛି like your continent or your ocean. Second order ମାନେ continent ocean ର features ଗୁଡା like your mountains or valley or plateau. Okay, so these are the second order. Next is third order. ये localized ହେଇବ ହେଲା river ମାନଙ୍କର ଯାଇଛି river ତା ହିସାବରେ landform ବନେଇବ like your waterfall ସବୁଠୁ common ଥାର୍ଡ order ଆମର landform waterfall ତା ସହିତ ଗଲି ଅଛି ଏରୋଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାପରେ ତମର କ୍ୟାନିୟନ୍ସ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଥାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓକେ ସୋ ଏଠି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି କ'ଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଓକେ ସୋ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମରେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆକୁ ବଢିବା The presence of hanging valley or U-shaped valley is a characteristic feature primarily associated with erosional work of dash. So ମନେ ରଖିଥାଅ hanging valley or U-shaped valley ଏମିତି U ଟାଇପ ର ସେପ୍ ହେଲା ଇଏ ହବ କାହାର ନା ଗ୍ଲେସିୟର ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲେସିୟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଭଳିଆ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତଳ ସାଇଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ତରଳେ ବା ମେଲ୍ଟିଂ କରେ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲେସିୟର ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଭ୍ ହବ ଯେମିତି ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ବାମ୍ବୁର ବାଉଁଶର
मझी खोलीदेव तापर बरफ रखिदेव बरफ धीरे धीरे कौन हम स्लीप होना तौक आसो ये सेमितिया ये स्लीप जो हुए यही यू आकार भैली बने हैंगिंग भैली कहती कि यू शेप भैली कहती ओके सो आंसर इज सी ग्लेशियर which type of rock is formed by the cooling and solidification of the molten rock material so molten rock material cooling hela pare kon hobo eta sabutu sahaj question tini prakar rock ache ame janiche first hela primary rock also known as igneous rock this is called primary rock ଆଉ secondary rock ହେଲା କଣ ତମର sedimentary rock ଆଉ tertiary rock ବା third type rock ହେଲା ଆମର କଣ metamorphic rock primary rock erode ହେଇକିନା second sedimentary ହବ ଆଉ ଦିଟା ଆଙ୍କ earth ର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି lithosphere cross କରି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ extra pressure ଆଉ temperature ମାନେ chemical changes ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ metamorphic rock ରେ convert ହୁଅନ୍ତି but प्रथम थर ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ମ୍ୟାଗ୍ମା और ଲାଭା ସଲିଡ୍ ହେଇକିନା ବନିବ କୋଉ ପ୍ରକାରର igneous rock okay these are also known as by the way igneous rock ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି intrusive and or extrusive ओके सिंपल जिंस एटा केमती हमें होया मैग्माटा हैला कोन पृथ्वीर भीतर रहले ताको मैग्मा कहती बाहरिले ब्लास्ट हेले आग्नेय उद्गीरण हेले सेटा लाभा हो जाए तो मैग्मा जदि माटी तळे रहिला ठंडा हला ताहाले इग्निशियस रह मन रखता आउ लाभा जदि पृथ्वी पृष्ठ को आसीना ठंडा हला सी हमरो एक्सट्रूसिव रॉक करला ओके the layer of atmosphere where temperature inversion हुए ओके तो टेम्परेचर इन्वर्सन कौन गोटे आम कनसेप्ट शुणुचे adiabatic lapse rate adiabatic lapse rate give me 1 second I have to share the link so adiabatic lapse rate अर्थ कौन है जदि सिंपली पुट करिया गले आमे जदि गोटे किलोमीटर पृथ्वी पृष्ठर ऊपर को जीवा ताले टेम्परेचर -6.5 डिग्री कमी जीवो माने 6.5 डिग्री कमी जीवो जदि तळे अछि 10 डिग्री ऊपर गले 3.5 डिग्री हे जीवो दिस इज कॉल्ड 1 किलोमीटर ऊपर गले ऊपर को हे जीवो दिस इज कॉल्ड adiabatic lapse rate मन रखता adiabatic lapse rate को लेयर जाय जीवो पृथ्वी रो अर्थ स्टार्ट करी ट्रोपोस्फियर लेयर पर्यंत जीवो इवन इफ स्ट्राटोस्फियर लेयर रो किछि पोर्शन को जीवो बट गोटे लेयर पर स्ट्राटोस्फियर गोटे जगह रे ओजोन कोन हेतिबो ना कन्वर्ट करिवो ओजोन बनिबा आरंभ हो केमति ओजोन बने आरंभ करे ना ऑक्सीजन रो एटम इडी ब्रेक डाउन हो जाय केमति ब्रेक डाउन हुए ना अल्ट्रा वायोलेट रे साउंड लो आसुची गोटे सेकंड साउंड काई लो आसुची एबे टे कहबो साउंड इज इट गुड और नॉट और आई वांट टू चेक साउंड लो आसुची या इट्स गुड हाउ केते झक्का आई डोंट नो आ बेसिकली चड़चड़ हो जदि चड़चड़ होची ताले मते कहबो ହେଲା साउंड लो आसुची माने बढ़ाई देले चड़चड़ साउंड आसु टिके माने कोन कहदी अलगा साउंड आसु ओके एबे आई गेस इट इज गुड और नॉट ठीक कहि दियो ओके सो हुए कोन म कहि दोची ए जगह रे ए लेयर रे हमें पाठ को आसीबा ए लेयर रे कोन हुए ऑक्सीजन लेयर हमर ऑक्सीजन एटम इटी ब्रेक डाउन हो जाय माने ऑक्सीजन O2 सबले रे माने दीटा ऑक्सीजन रो एटम मिसी जाए मिसिकिना कौन करिवो ना O2 ब्रेकडाउन हो ब्रेकडाउन हेकिना आ गोटे ऑक्सीजन एटम एठी मिसी तो O3 बने आ O3 बनाए किए अल्ट्रा वायोलेट रे आ ये अल्ट्रा वायोलेट रे टाको ये एब्जॉर्ब कर दिए मने रखिता गोटे एते हाई इंटेंसिटी रो रे को जरा कोनोसी जिंस एब्जॉर्ब करूची तार टेम्परेचर टा से आज मध्ये एब्जॉर्ब करतो
तो एई जगह रे कोन होय ना एटमॉस्फेयर ए अल्ट्रावायलेट रो टेम्परेचर टाको भी एब्जॉर्ब करते जा द्वारा कि एई जगह रे टेम्परेचर इन्वर्जन हुए। अच्छा मने रखिता এই জায়গায় भी टेम्परेचर माने एटा हला कोन ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर एटी माने आंसर हला कोन स्ट्रेटोस्फियर एटी ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर इन्वर्जन हुए हला तापरे नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर अच्छा मते ठीक को नेक्स्ट लेयर कोन ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर हला मेसोस्फियर रे कोन हुए टेम्परेचर ଆମର ପୁଣି ବଢି ଯାଏ ମାନେ ପୁଣି କମି ଯାଏ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତମର ଥର୍ମୋସ୍ଫିयर ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ପୁଣି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଯାଏ ତ ଏଠିରେ ଆନ୍ସର ହେଲା ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ବି ଆଉ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ବି ମନେ ରଖିଥା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନଭର୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓକେ ଆଗକୁ ଯିବା What is the primary cause of deflection of planetary winds like westerlies or trade winds? ଅତି ସହଜ ବାରମ୍ବାର ପଢେଇଛି ବି ଆମର ଯଦି ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସ କରୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସ ଯେଟା अवेलेबल ଅଛି ତ ଆନ୍ସର ଇଜ what is the answer କି କହି ପାରୁଛ sound low okay answer is yes coriolis forces very good coriolis forces सिंपली कहयाकू गले कोरिलेसिस फोर्सेस कौन ना तमर अर्थ रो सेंटर इक्वेटर रू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जोटा सेठी विंड टा तमगर कोड साइड दिस इज योर लेफ्ट जदी राइट को डिफ्लेक्ट करिवो एग्जैक्ट उल्टा हला तमरो एमि दिबो एग्जैक्ट उल्टा हला तमरो कोठी ना सदर्न हेमिस्फीयर रे कोन हबो ना राइट रू सॉरी लेफ्ट रू राइट को हम एपट साइड रे कोन कहली काउंटर क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज एटा हां एथरे आउट कांसेप्ट हला कोन साइक्लोन कांसेप्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक साइक्लोन अछि गिव मी 1 सेकंड सॉरी गाइस हां हेलो कोन करिया को आओ क्वालिटी देखियो जदी भल पे हां 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 पिचू पिचू पळो ना हां हां ठीक अछि हां ठीक अछि हां ठीक अछि हां ओके सॉरी सॉरी अबाउट दैट रात्रि रे भी क्लास आ करियानी रात्रि डिस्टर्ब भारी हां ठीक अछि तो कोरिलेसिस फोर्सेस एटी कोन ना विंड टा डिफ्लेक्ट हुई सिंपली विंड इज डिफ्लेक्टेड हला जोटे थिबो तार अपोजिट डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट होबो साइक्लोन जोटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे साइक्लोन टा कोन हबो क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर रे काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ठीक अछि तो विंड रो डिफ्लेक्शन तो प्लैनेटरी विंड बा वेस्टर्लीज हुए कोन पे ना कोरिलेसिस प्रोसेस पे आखु जिबा the term isohead it refer to the connecting point of the map with the same dash कोन मन रखता आइसो माने समान जिंस हाइट रो अर्थ कोन एठी आसीबो कोन रेनफॉल हमें गोटे इंडिया रो मैप जदी बनेबा ताले एमिति गोटे थाए एमिति गोटे स्ट्रक्चर पाइबो हला एट लेखा आइथिबो 200 mm तापर एमिति गोटे स्ट्रक्चर पाइबो एठी लेखा आइथिबो 30 mm एमिति गोटे स्ट्रक्चर आस्थिबो एठी आसीबो 400 mm एट गोटे स्ट्रक्चर आस्थिबो 400 mm एमिति देखाइ था एटा गोटे मैप तबे यदि मॉनसून क्लास एठी YouTube रे मध्ये अवेलेबल से देखिथिबो ताले एटा ए मैप ता देखिथिबो एठी कोन ना एतिकी जो एरिया गारो भीतर एतिकी एरिया रहिला गारो भीतर एतिकी एरिया रहिला सेतिकी एमएम रो वर्षा हेछि सेठी ओके तो आइसो एथर अर्थ हला कोन रेनफॉल ओके आखु जिबा the maximum solar energy received at the earth's surface occur when sun is directly overhead at the zenith the maximum solar radiation is known as कोन कहंती anyone can try everyone can try किए कोई परिबो सो एथरे जतक वर्ड्स गुडा लेखा आइछि टिके देखि दबा होला तापर करबा सो these are the terms of heat transport physics जदि के पढिथिबो जानिथिबो होला जदि
पढ़िनो ज्योग्राफी रो गोटे बेसिक जिंस हीट ट्रांसफर गोटे जगह आउ गोटे जगह को टेम्परेचर बा हीट केमती जीवो तार एक्चुअली बहुत गुडे मेथड अछि फास्ट हैला कंडक्शन कंडक्शन कोन सो सपोज दिस इज ए पेन दिस इज ए मेटालिक पेन देयर इज अनदर मेटालिक पेन हला दीटा पेन को कनेक्ट करली कनेक्टन पेन ए पेन टा रो टेम्परेचर हला 60 डिग्री टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस ये हला 10 डिग्री सेल्सियस ये ठंडा अछि गरम अछि आको कनेक्ट कर देले कोन हबो ना टेम्परेचर टा यू टू सेट को ट्रांसफर हो तो एटा को कहती हमर हीट ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन लागिले कंडक्शन नेक्स्ट हला एडवेक्शन बा कन्वेक्शन मध्ये कहती एडवेक्शन बा कन्वेक्शन ये हुए कोठी एटा फ्लूइड रे बा लिक्विड रे बा एयर रे फ्लूइड रे मु ज्योग्राफी में कहछि जे फ्लूइड माने खाली तेल पानी को बुझा जायनी एयर को मध्ये फ्लूइड हिसाब करा जाय सो फ्लूइड इन मींस कोन ना लिक्विड एटी लिक्विड जरी हमर एयर एंड वाटर तो एयर एंड वाटर को जतरा हमें गरम करू जदी सिंपली देखिया केंती एयर एंड वाटर को गरम करिवु तळ लेयर टा आगो गरम हबो गरम लेयर टा ठंडा होई ऊपर को जीवो ऊपर रो ठंडा लेयर टा तळ को आसीबो एमिति सर्कुलर मूवमेंट हुए इनसाइड द चैम्बर बा इनसाइड द एटमॉस्फेयर और इनसाइड जे कोनोसी भी तमे जागा रे एटी हुए तमरा एडवेक्शन तापरे नेक्स्ट इज रेडिएशन ओके सो रेडिएशन कोन तमरा जदी अर्थ अछि सन अछि अर्थ अछि आ भितर कोनोसी मीडियम नाही दिस इज एम्प्टी स्पेस बट सन रो लाइट आसी ना अर्थ रे पडुची अर्थ को गरम करूची आकु कहंती कोन रेडिएशन आ सन रो रेडिएशन को कहंती कोन इन्सोलेशन सन रो एटा आसी इन्सोलेशन तापर एटी आ गोटे टर्म अछि आ गोटे हीट ट्रांसफर रो जिंस टर्म टा अछि एटी लिख दोची टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एटी हीट ट्रांसफर हुए केमिति एटा एठरे मध्ये अर्थ रो संपर्क अछि सो कोन हुए ना अर्थ को तमरा दिन रे सूर्य किरण पड़ी अर्थ रो सरफेस टा गरम हबो तापर वन सूर्य चली गले कोन हबो अर्थ रो एयर एटमॉस्फेयर टा कोल्ड होआ को से स्टार्ट करिवो बट तमरा सरफेस टा हॉट थिबो तो हॉट सरफेस रो कोल्ड सरफेस को टेम्परेचर ट्रांसफर हो ये गोटे काइंड ऑफ रेडिएशन आको कहंती टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो आंसर कोन व्हाट इज द आंसर कि कोई परिबो व्हाट इज द आंसर आंसर इज यस insolation okay answer is insolation okay next moving on the next which relief feature of the ocean floor is characteristic by one isolated plateau seamount okay again टिके ट्रेड एक्सप्लेन करिया तापर पढिया एपन तो जो माने क्लास भल लागिलानी लाइक ये कर दियो आ संग साथी भीतर शेयर कर दियो आ जदी एमितिया सेशन चाहुचो ताले मध्य कमेंट करो आ जहा को दरकार अछि एक्सप्लेनेशन सहित वीडियो देन यू कैन सी अदरवाइज मु मने पढी किना कहि पारे टाइम हमर प्रोग्राम को सारिया अछि जेतु हला तो आमे सेटा करि परिबा हला टाइम पूर्व सारिया पय हला हम सीधा क्वेश्चन पढिबी टिके हल्का एक्सप्लेनेशन करि पढेबी बट एते ड्रॉ करिया कारण कोन टिके जानि परिबो ओके आंसर आसी गलानी बी गायोस ओके देखिया सो जेतबेले आमेर ओशन स्टार्ट हुए डायरेक्ट ओशन स्टार्ट हुए नहीं फास्ट गोटे लेयर आरंभ हुए गोटे स्लोप आरंभ हुए ताको कहंती कॉन्टिनेंटल सेल कॉन्टिनेंटल शेल सेल सॉरी सेल तापर टे स्लोपी स्टार्ट हबो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप ए स्लोप ता सरला पर टे उठी जाए एटा कहंती कॉन्टिनेंटल राइज ओके कॉन्टिनेंटल सेल कॉन्टिनेंटल स्लोप कॉन्टिनेंटल राइज तापरे प्लेन आरंभ हुए सीधा आगु कहंती अबाइजल प्लेन समुद्र भितरे माउंटेन स्टार्ट हुए ताकू कहंती सी माउंट जदि माउंटेन रो सरफेस टा फ्लैट थिबो तब कोन कहंती यस आंसर इज राइट आकाश महाको महाकाल महाकाल ओके सो दिस इज कॉल्ड गायोस ट्रेंच कोन गात भलिया
जोटा हमें रिफ्ट वैली को समुद्र भितर सेटा कहते ट्रेंच ओके तो दीज आर द थिंग्स पूरा हम कवर कर देली जति दरकार गोटे क्वेश्चन में प्राय तमरो ओशनिक फ्लोर ओशन फ्लोर कवर कर देली ओके the main cause of a daily and periodic rise and the fall of sea level or tides each अति सहज क्वेश्चन आर आंसर कौन दिए ଆମର periodic rise of sea level বা tide तार रीजन कौन जुआर और भट्टा आर रीजन कौन हाई टाइड लो टाइड जुआर और भट्टा जनरली दीटा थाए हाई टाइड हुए तापर लो टाइड हुए दीटा जिंस हुए कि नहीं कौन पे हुए ओके सो आंसर ऐसे आरंभ होलानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन यस राइट तो सन पृथ्वी मनकर रहिला एटी सूर्य रहिला पृथ्वी चारिपटे हमर कौन बुलुची मून बुलुची तो मून आ सन एर ग्रेविटेशन रे स्टार्ट होची कौन तमर टाइड यस डायगोनल और सेमी डायगोनल दिस इज द कांसेप्ट हला तो एटा हाई टाइड अपोजिट डायरेक्शन रहिले गोटे साइड रहिले हाई टाइड अपोजिट डायरेक्शन रहिले लो टाइड अति सिंपल ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following condition contributes to higher salinity in the ocean ocean रे higher salinity होवार कारण कोन अति सहज क्वेश्चन आर आंसर कोन ओशन रो एक्चुअली सरफेस एरिया यदि पृथ्वी रे सरफेस एरिया देखिबा 70% सरफेस एरिया हला ओशन रो बा लैंड मास रो मात्र 30% हला लैंड तो अधिक खरा कोटा पाए ओशन पाए तो अधिक रेट ऑफ इवापोरेशन कोठी हुए वेरी गुड हाई रेट ऑफ इवापोरेशन सेतिले कोन होय जते पानी मिसे ताटो अधिक इवापोरेट हो तो सैलिनिटी ओशन रो अधिक होय जाय द मोहो डिस्कंटिन्यूटी marks the boundary between which two layer of the earth अच्छा डिस्कंटिन्यूटी ऊपर दरकार किछि इंफॉर्मेशन लिखित बनै देबी जदि कहिबो नहले आकु पळेबी बोलसे को do you need anything on more basic discontinuity this is more basic discontinuity okay crust of mantle okay सर एक्सप्लेन करंतु समस्त कहले करिवि 7 जण अछ 8 जण अछ समस्त कहले करिवि आई विल एक्सप्लेन ओके गोटे काम कर दवा काय मन दुख करियो तमे ओके मन दुख करनी कर दवा मु चाहूँ टे कमेंट करो समस्त टे कमेंट करो जहाँ डाउट अछि पचारो सांग साथी मन तो एक सेशन शेयर करो बने पे क्लास करिया को टाइम लागु छी ओके crust and mantle so I am going to explain it टिके भल से देखो फर्स्ट तमरो layer that is your upper crust आ केते किलोमीटर प्लीज मते आउट करिया कहनी हला तापरे lower crust this is your upper crust this is your lower crust upper आ lower crust भितरे अछि तमरो गोटे लेयर गोटे डिस्कंटिन्यूटी आको कहंती कोन कोर्नर डिस्कंटिन्यूटी अलग कलर यूज करछु अच्छा म ये कर दउछु मतलब एका तो कर दउ तापर लिखि दउछु तापरे नेक्स्ट हला लोअर क्रस्ट को तमरो लोअर मेंटल जो अपर मेंटल तो यस एठी गोटे छोटियाटे अछि दिस इज योर अपर मेंटल ओके अपर क्रस्ट अपर मेंटल टा एठी अपर मेंटल वन सेकंड लिभे दउछु एठी लिख दउछु अपर मेंटल तापरे के साइड रो पड़छि कारण तमरो मुहटा मर हो जाउछि अपर मेंटल रो लोअर मेंटल तापरे लोअर मेंटल रो अपर कोर तापरे अपर कोर रो लोअर कोर दीटा अछि कोर दीटा सब ता भितर सब डिस्कंटिन्यूटी अछि हला मु एबे डिस्कंटिन्यूटी कहि दउछि तमे मते नोट डाउन कर दियो ठीक अछि अपर क्रस्ट रु लोअर क्रस्ट मझिरे रहउछि दिस इज योर कर्नाड
कोर्नाड डिस्कंटिन्यूटी टी खाली लिख दोची तापरे लोअर क्रस्ट रु अपर मेंटल मोहर विसिक बीआईसीसी तापरे रेप्ती अपर मेंटल लोअर मेंटल रेप्ती तापरे अपर मेंटल अपर कोर गुटेनबर्ग वाह एटा जो मन टे मुंडो ऊपर बाउंस होची जानि था एटा कोन एक्चुअली जो लेयर अछि आमे केमति जानिबा जे लेयर क्रॉस सरी जाउची अपर क्रॉस सरी जाउची लोअर क्रॉस आरंभ होउची आमे केमति जानिबा जे अपर मेंटल आरंभ होउची तो से दीटा लेयर भितर गोटे गैप थाए गैप इन भाबना किछ खाली जगह सेठी टिके माने कोन कोन अपर लेयर और लोअर लेयर भितर कनेक्शन टिके अलगा थाए हला स्टोन स्ट्रक्चर अलगा थाए रॉक स्ट्रक्चर टी अलगा थाए हला तो सेथि लागि आमे ताको कोन डिसकंटिन्यूटी एटी लेयर टा डिसकंटिन्यू हो जाउछ हला तापरे अपर कोर लोअर कोर टा कोन लेमान डिसकंटिन्यूटी लेमान सो जानि था कोन तमर अपर लेयर लोअर लेयर भितर लेमान डिसकंटिन्यूटी ओके आगु जवा 12 number question. A batholith is a large body of an intrusive igneous rock that cools deep beneath the earth's surface. What is the texture physically associated with batholith? तो batholith अच्छा गोटे कथा एबे किछि समय पूर्व गोटे कथाटे कहितली जे batholith हमर बा जे से अर्थ रो सरफेस भितरे जदि कोनो जिंस ठंडा हैला ताको कोन कहंती इंट्रूसिव रॉक जोटा हुए कोन तो हमर मैग्मा हला ठीक अछि जेतबेले कोनोसी जिंस धीरे धीरे माने अर्थ सरफेस भितर ठंडा होछ माने से स्लोली स्लोली ठंडा हबो तो स्लोली ठंडा हैला माने कोन हबो ना तार जो ग्रेन स्ट्रक्चर बा से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टा से टिके कोन हबो कोरास ग्रेन हबो ताको कहंती फेनेट्रिक बा कोरास ग्रेन हला फाइन रहबो कि कोरास रहबो ठीक अछि काना धीरे धीरे ठंडा होछ हला आकु जिबा Which of the following landform is least likely to be formed by glacier deposition? अच्छा glacier deposition बा glacier गोटे जगह जमा हेले केमिति landform टा हबो हला बट पचारछि एठी देखो क्वेश्चन बुलेई दिए कोठी आमे देखो गोटे जिंस आखि बुझी दो एठी लिखा है लिस्ट माने नेगेटिव माने ग्लेशियर डिपोजिशन से संपर्क आर नाही माने ग्लेशियर एरोजन ग्लेशियर जतो बडे गोटे जिंस एरोज करिवो ताहाले केमिति करिवो ठीक अछि तो एठी हमर आंसर हबो कोन की कहि परिवो बी यस सिर्क सिर्क एटा हुए केमिति ना ये बेसिन भलिया जतो बडे ग्लेशियर गोटे जगह रे जमा हिते हला जमा हे गेले तळे सब ग्लेशियर रो रॉक्स गुडा हला ऊपर रॉक्स गुडा से जमा हे जाय दिस इज कॉल्ड सिर्क हला सिर्क हला तापर एस्कर ड्रमलिन एंड मोराइन ये सब हुए केमिति ना ग्लेशियर जतो बडे धीरे धीरे हमर कोन कथि एरोड करे सिर्फ आखो पाखर लैंड को एरोड करी आरंभ करे हला से जो ये उल्टा कह देली ग्लेशियर जतो बडे डिपोजिशन करी आरंभ करे हला सर्क हुए कोन एरोड रे ठीक अछि नेक्स्ट आकु जिबा हला स्टालसाइट और स्टैगमाइट्स ये हला कोन क्रास्ट टोपोग्राफी रो फीचर क्रास्ट टोपोग्राफी माने हला कोन हला बहुत गुडे जिंस अछि जो माने इंग्लिश रे बहुत माने बहुत गुडे जिंस लिखा हितिबो मुंडो ऊपर यदि बाउंस होची क्रास्ट अर्थ हला सिंपल बुझो पानी खाई पत्थर तळु खाई देछि हला गोटे बड़ लेयर रो पत्थर अछि ता तळु पानी खाई खाई पत्थर रो बहुत एरिया को खाई देछि वर्तमान सेठी गात भलिया जिंस अछि दैट इज कॉल्ड क्रास्ट टोपोग्राफी आ पत्थर खाइबो पानी को पत्थर खाइबो जो पत्थर थाए कोन लाइमस्टोन बा चूर्ण पत्थर चूर्णटा जानचो पानी रे पूरा कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए तो चूर्ण पत्थर जदि रहिला सेठी कोन हुए ना कंप्लीटली सॉल्युबल हो जिवो ता तो हेतले कोन थाए हमर बहुत गुडे समुद्र कूल रे जे देखिबो समुद्र कूल रे बड़ बड़ वाटर केव्स बने केमिति ना इस लाइमस्टोन रो रॉक स्ट्रक्चर थिबो लाइमस्टोन को धीरे धीरे समुद्र खाई देतिबो तो पूरा एदी बड़ बड़ सी केव्स गुडा थिबो होला तो इट इज लाइमस्टोन ठीक अछि 14 नंबर सी 15 नंबर The concept of continental drift was proposed by Alfred Wagner based on evidence. को प्रकार एविडेंस से स्थापना करथिले जे एटा हबो के कहि परिबो
को प्रकार हबो की कहि परिबो अगेन सो एठी गोटे कांसेप्ट आसी जिक्सॉ फिट पजल जिक्सॉ पजल जानिचो एमती मुंड हेइना थिबो एपट साइड रे एमिति गोटे हेइना थिबो एटा देटा फिट कर देले गोटे कंप्लीटली स्ट्रक्चर टे बनि जाउथो दिस इज कॉल्ड जिक्सॉ पजल तो जिक्सॉ पजल हमर ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ସାଉଥ ଆମେରିକା କୁ ଆଫ୍ରିକାର ତଳେ ଆସି ମିଶେଇ ଦବା ଇଏ ସମାନ ହେଇଯିବ ଆଉ ମାନେ ମାନେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫସିଲ ମିଳିଛି ଡାଇନୋସର ଫସିଲ ଖାସ କରିକିନା ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଏଇ ସାଇଡରେ ସେମ ପ୍ରକାର ଫସିଲ ମିଳେ ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଏଇ ଦିଟା କନେକ୍ଟେଡ ଥିଲେ ଆଗ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ ବାଇ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରିପ୍ ବାଇ ଆଲଫ୍ରେଡ ୱାଗନର ଓକେ फास्ट एटा जानिथियो संपूर्ण पांजिया थिला बहुत गुडे सुपर कॉन्टिनेंट थिला पांथालांसा थिला वाटरटा ओसेनटा सुपर ओसेन ता गाउतला पांजिया रो भागिला ऊपर भागटा गला मलेशिया तळ भागटा गोंडवाना हला इंडिया गोंडवाना लैंड रे थिला गोंडवाना रो अलगा हेगना मलेशिया रे बाडेला हिमालय मतला एटा तो समस्त जानिथिबो होपफुली एटा किछि असुविधा होबो नाही नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिप्रेजेंट्स ए थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय एरोजन वर्क ऑफ ए रिवर समुद्र नदी गोटे रास्ता रे दे गला आउ तापरे पत्थर को काटी काटी गला ताहले को प्रकार इरोजनल वर्क हे परिबो की कहि परिबो एटा ओल्ड स्टे ये रे डेल्टा फॉर्मेशन ओके सो डेल्टा जो जिंसटा ये तमरो माने एरोजन रे होची ना ये रे होची डिपोजिशनल होची डेल्टा डेल्टा जो बनୁଛି रिवर ର ମୁହଁରେ डेल्टा बनୁଛି ସେ ଏରୋଜନ ଯୋଗୁ बनୁଛି ନା डिपोजिशन ଯୋଗୁ बनୁଛି एरोजन ମାନେ କଣ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁ बनୁଛି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇ बनୁଛି रिवर ଆଣିଥିବା ଯାହା ମାଟି ଗଡି ଯାହା ବି ଯୋଉଠି ଜମା କରି बनୁଛି ତା ଆନ୍ସର କଣ व्हाट इज द आंसर ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କଣ କ୍ୟାନିୟନ୍ସ ହେଲା ବା ଗୋର୍ଜ ହେଲା କ୍ୟାନିୟନ ବନାଏ ହେଲା କଣ ଥିବ डिपोजिशन यस डेल्टा बने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ये ହେଲା ତମ एरोजनल लैंड ठीक अछि कौनसी गोटे लैंड रे देई रिवर बइला तो से रिवर ताकू धीरे धीरे खोली खोली जीवो आउ कैनियन बनेबो एग्जांपल सबुठ बड़ एग्जांपल ହେଲା कोन नर्मदा दुनिया सबुठ बड़ कैनियन रो ना कोन ग्रैंड कैनियन होला ग्रैंड कैनियन रे तमरो कोलोराडो नदी होची तो सबु कैनियन रे तमरो रिवर बोची भोल्गा रिवर बोची भोल्गा कोची डैन्यूब रिवर बोची गोटे हमर बड़ कैनियन ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट कैनियन होला तो ये सबु कैनियन रिवर रो इरोजनल बन ओके आकु जिबा exfoliation is a type of physical weathering that primarily occur in the which temperature এটা বহুত বড়িয়া क्वेश्चन টা ହେଲା এটা ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା एग्जाम रे ହେଲା TGT एग्जाम ଗୋଟେ କୋ TGT एग्जाम ରେ ଆସିଥିଲା ହେଲା এটা ବଢିଆ क्वेश्चन ଟା exfoliation ଏଇଟା এই क्वेश्चन ଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡିଲା so exfoliation is a type of physical weathering that primarily occur in which temperature which environment so एठी आसी जाए एक्सफोलिएशन रो काम रे आसी जीवो तमरो टेम्परेचर केमिन टेम्परेचर ना हमरो डाइयूरल टेम्परेचर हला डाइयूरल टेम्परेचर ता अर्थ कोन हुए जेतबेले समर हो बा तमरो डे हो टेम्परेचर एट द जेनेट पहुंच जीवो अराउंड 40 डिग्री नाइट हो टेम्परेचर हो नाइट रो अराउंड 20 डिग्री माने 20 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस तो कोन हुए ना दिन बेला राति रे सेटा ड्राई हो जाए दिन बेला हमर ह्यूमिड हो जाए राति बेला कोल्ड हो जाए दिन बेला हॉट हो जाए तो एई जिनिस जोगु तो पत्थर भितरे कोन होय जे पहाड़ गुडा अछि बा जहां भी अपन रॉक्स अछि से ताको ओडिया रे कोन संकोचन प्रसारण एक्सपैंड एंड कंप्रेस एंड एक्सपैंड ए भादरा कोन होना हेटे क्रैक देखिया पड़ी से क्रैक टा हमर हुए एक्सप्लोरेशन ओके okay next question the presence of ventifacts and air ducts indicate dominant geomorphic agent को प्रकार geomorphic agent air ducts तो ये बने कहा द्वारा की कोई परिबो सी wind yes ठीक अछि elongated u air ducts हला कोन elongated ridge गोटे पहाड़ अछि
এই ସାଇଡ୍ ରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ୱିଣ୍ଡ ର ମାଡ଼ ହଉଛି ତ ଏଠି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଖାଇ 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 ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନିବ। ଏଇଟା କହନ୍ତି କଣ ଏୟାର ଡ୍ୟାମ୍ସ ହେଲା। ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ଏଠି କଣ ନା ଷ୍ଟୋନ୍ସ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ହେଲା। ଷ୍ଟୋନ ଗୁଡାରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଭେଣ୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ ଷ୍ଟୋନ ଯେ ଥିବ ସେ ଷ୍ଟୋନ ଦେଖି ତମେ କହିପାରିବ ୱିଣ୍ଡ ର ଡିରେକ୍ସନ ଏପଟେ ହଉଛି। ଏଟା ୱିଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ବନେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଥାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଇରୋଜନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା। erosional landform. Next is which seismic wave is characteristic by push and pull motion, compressional, and can be travel through the solid liquid gas. କୋଉ ପ୍ରକାର କିଏ କହିପାରିବ? So ଯେତେବେଳେ କୌଣସି earthquake ହୁଏ P waves କହୁଛୁ okay answer is yes P waves ଯେତେବେଳେ earthquake ହୁଏ ତିନି ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ୱେଭ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ହେଲା P wave ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ କଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଲା S wave also known as secondary waves ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି T wave that is transverse wave ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ଆମର ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ ଟା କଣ ନା ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ତିନିଟା ମିଡିୟମରେ ଯାଇପାରିବ ସଲିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବଟ୍ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଟା ଓନ୍ଲି ତମର ସଲିଡ୍ ଇଏ କୌଣସି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରେ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିଲାଗି ଓସେନ୍ କ୍ରସ୍ କରିକିନା କେବେ ହେଲେ ଏସି ୱେଭ୍ ଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ପାଣିରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରିବନି ଯାହା ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରେ ଟି ୱେଭ୍ କରେ ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ୱେଭ୍ yes these are longitudinal waves next is ওই ଯିବା quartz বা quartzite ହେଲା quartzite is a metamorphic rock formed from the metabolism of the which parent rock କିଏ କହିପାରିବ yes yes ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲି S ଟା actually transverse yes T wave ଟା transverse ନୁହେଁ T ଟା ଆଉ ଗୋଟେ wave P ଟା ହେଲା longitudinal wave very good ମୋର ମନେ ପକେଇଦେଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା longitudinal S wave ଟା transverse wave ଯଦି କୋଉଟା longitudinal କୋଉଟା transverse ଯଦି ପଢିବାକୁ ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଯଦି ହୋପଫୁଲି ଆଉ ଦିନେ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଯଦି ଦିନ ବେଳା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଥିବ I will try to explain you everything okay so as of now ମତେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବି କ୍ଲାସ୍ ମଝିରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କି ଏଣ୍ଡରେ ମନେ ପକେଇ ଦବ ମତେ ସାଇକ୍ଲୋ ଯୋଉ କଣଟା ଆମର ଟେକ୍ଟୋନିକ ୱେଭ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେବି ଓକେ quartz বা quartzite is a metamorphic rock formed from the metamorphism of the which parent rock okay ସେ sandstone ରେ ବନେ ହେଲା sandstone ସା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ sedimentary rock okay hanging valley hanging valley ବିଷୟରେ ବୋଧେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆରାମ ସେ କହିପାରିବ ଏଇଟା କୁହ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବିନି hanging valley ୟୁସେଫ୍ valley କହିଦେବି hanging valley often meet the main valley at the great height sometimes marked by the waterfall it is evidence of what କିଏ କହିପାରିବ yes very good glacier ହେଲା ଅନଇକ୍ୱାଲ glacier erosion ବେଳେ ବେଳେ କଣ ୟୁସେଫ୍ valley ରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଅଧିକ ହୁଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ସେମ୍ valley this is called hanging valley okay 23 basalt हाँ V-shaped valley is river U-shaped valley glacier V-shaped valley river okay basalt is an example of an extrusive rock okay basalt is an example of extrusive igneous rock which is commonly found in which kind of structure so basalt rock generally ତା କଲର ଟା ଟିକେ କଣ ନା ଡାର୍କ ଥାଏ ହେଲା ଡାର୍କ ଇନ୍ ନେଚର ଆଉ ମିଳେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଉ ବସାଲ୍ଟ ରକ୍ ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଆମର ଆର ରକ୍ ଟା ଯୋଉଟା କି ତମେ କହିପାରିବ କଣ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କହିପାରିବ ହେଲା ଆବା ଆଣ୍ଡରସାଇଟ୍ ରକ୍ କହିପାରିବ ବସାଲ୍ଟ ଦି ପ୍ରକାର ରକ୍ ଅଛି ବସାଲ୍ଟ ରକ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଡରସାଇଟ୍ ରକ୍ ଏ ଦିଟା ରକ୍ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ yes very good oceanic crust and volcanic plateau ये oceanic rock टा बसाल्ट टा
जल्दी ठंडा हुए, एंड्रोसाइट टा धीरे धीरे ठंडा हुए। ओके, तो ये दीटा अलग अलग टाइप ऑफ रॉक। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय व्हिच आइस क्रिस्टल्स pry rock grain apart in cracks is called, एटा बढिया क्वेश्चन टा टिके बुझिया चेष्टा करे अर्थ कोन। The process by which ice crystal pry rock grains apart the crack, तो कौन हुए टिके बुझिया चेष्टा करो, हम कहि दोस्ता हैला। यस यस, आंसर इज राइट, बट टिके ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो माने बुझी पारनाते ताका पय। शीत दिने बा एक्सट्रीम वेदर फेनोमेनन रे गोटे मन कर रॉक अछि, रॉक भितरे होल अछि, एई होल रे पानी आसी जमा हो गला, तापरे कोन हला ना पानी पानी आसी रही गला, पानी तापरे बरफ हो गला, बरफ जेतबेले हे गला, मने रखिता वाटर जति स्पेस नबा बरफ ताटू 3% अधिक 9 पाखा 10% अधिक स्पेस नबा, ता वॉल्यूम 10% एक्स्ट्रा बढ़ी जीवो, जेतबेले वॉल्यूम बढ़ी गला कोन हबो, क्रैक्स देखिया पड़िबो, से क्रैक्स टा कहंती कोन, फ्रॉस्ट वेजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड संतोषिनी, वेरी गुड शक्ति। ओके, दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट वेजिंग। ओके, which type of which rock type typically exhibits strata layer often contains fossils, fossil सुनला माने आंसर संगे संगे हे जिवो कोन, हां फ्रॉस्ट वेजिंग ना सी कोएटा। ओके, सो मन रखता सेडिमेंटेड रॉक, फॉसिल माने सेडिमेंटेड रॉक, केबे हेले मेटा इग्निशियस रॉक रे फॉसिल देखा मिलिबोनी, कोन हुए ना गोटे इग्निशियस रॉक थिबो, सेडी वेदरिंग हबो, आइदर विंड खाइला नहले वाटर खाइला, वाटर थोइकिना एठी गोटे लेयर बनेला, तापरे आ गोटे विंड रो लेयर बनिला, तापरे पुणी वाटर लेयर बनेला, पुणी विंड रो लेयर बनिला, तो एमिति लेयर बाय लेयर बनि जाय, आकु कहंती कोन सेडिमेंटेड रॉक। आ ये सेडिमेंटेड रॉक हला हमर कोन ना कंटेंट फॉसिल्स, ठीक अछि, ये सेकेंडरी रॉक। नेक्स्ट बाकू, advection is a major process of heat transfer in the atmosphere. It primarily refers to the horizontal transfer of heat pipe. This is a simple question. Before I explain you about your adiabatic lapse rate, you go up to 1 kilometer, then the temperature decreases by minus 6.5 degrees Celsius. This is known as adiabatic lapse rate. Advection is the process of this lapse rate. Okay. तो आमे जदि देखिबा advection रे हुए कोन, ऊपर को गले टेम्परेचर 6.5 डिग्री प्रति गोटे किलोमीटर रे माइनस हो, दिस इज कॉल्ड adiabatic lapse rate. So this is related to the air movement of air, केमिति vertical movement हुए, very good, vertical movement of air, ठीक अछि, तो advection हम कहते बा also known as conduction, sorry convection। आउ एई प्रकार वर्षा मध्ये हुए ताकू कन्वेक्शनल रेनफॉल बा एडवेक्शनल रेनफॉल कहंती। शीत दिन खरा दिन कोन हबो ना गरम हबो, गरम हेले जल बाष्प कलेक्ट हबो, वाटर वेपर ठंडा हे उपरକୁ ଯିବ एंड रेन करिवो, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन रेनफॉल। ए रेनफॉल हुए कोठी, ये जनरली हुए तमरो अराउंड द इक्वेटर। ओके, the highest concentration of atmospheric ozone found in stratosphere, what is the approximate latitude of the ozone layer? So ozone layer अछि stratosphere रे, stratosphere रो ए जो ozone layer रो एरिया टा केते की कहि परिबो, 1 मीटर ओजन पाइबो। सर ज्योग्राफी रे मैराथन करंतु, मैराथन करिया पे मो पाखरे एक्चुअली टाइम नाही, आउ सेमति क्वेश्चन भी मिलिया दरकार, आउ मेन हला कोन सबुठ इंपोर्टेंट मैराथन करिया रे पिला मिनिमम 30 40 जण बसिया दरकार पूरा एकाठी, कारण मु बसी मैराथन करथि, पिला हमर बसी पळेबे जिबे स्टडी भल लागिबो, मैराथन करिबे ना समस्त आसी बसिया कथा, आ मु खाली कष्ट करी सेति मैराथन ही परिबनी, समस्त कष्ट करिया पड़िबो हला, मु बडी काई कष्ट देबी, केते पैसा मते पड़िबो, सो मैराथन सेति करिया। ओके, the highest concentration of atmospheric ozone found in stratosphere, what is the approximately altitude of the ozone layer, ki koi paribo? Okay, so answer is 20 to 50 kilometer, this is simple, 20 to 20 to 50 kilometer। okay, କହିଥିଲି ତ କାହିଁ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି, you know ହେଲା।
ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମତେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ ହବନି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କଣ କହନ୍ତି ମିଟ ରେ ଗୁଗଲ ମିଟ କି ଆମର ଇଏରେ କ୍ଲାସ କରୁନି କି ମତେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ପଚାରନି ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫାଷ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ କଲେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଥିଲାଗି ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ ତମେ ଯଦି ବସିବ ତମକୁ ଟିକେ ବୋର ଲାଗିବ ତ ମାରାଥନ ଯଦି କରିବା ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବେସ୍ ରହିବ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି 1 ମିନିଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲେ ମୁଁ ବସିପାରିବି ମତେ କାଟିବ ଓକେ Next question ଯିବା in northern hemisphere the which direction of the winds associated with a low pressure system cycle କହିଥିଲି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ଆରାମ ସେ କହିପାରିବ ସୋ ଏଇଟା ତମର ଆମର କଣ ଆସିଛି counter clockwise and converging ନା clockwise and converging କଣ what is the answer କହିଥିଲେ ଏବେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ northern hemisphere କୋଉ ପ୍ରକାର ଏଟା ହେଲା clockwise or anti clockwise what is the this is the what is this ନା ଏମିତି କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବ yes counter clockwise and converging ସବୁବେଳେ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା counter clockwise ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯାଇକିନା ପଛରୁ ଦେଖିପାରିବି temperature inversion refers to the condition where again this is the same question so temperature increases with altitude temperature humidity decreases with altitude air pressure decreases with rapidly with altitude temperature decreases rapidly with altitude तो एटा तो रूल हवा कथा तो एटा इन्वर्जन में इन्वर्जन कौन सी टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड्स ओके नो नॉट एट टेम्परेचर इन्वर्जन बा टेम्परेचर इन्वर्जन माने जते ऊपर आमे रूल कोन कहले एडियाबैटिक लैप्स रेट रो ऊपर जीवा टेम्परेचर टा कमी कमी जीवो बट को जगह रे बढ़िला ताले सेटा इन्वर्जन हेगला बा फॉल्स हेगला तो हेतला कि टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 30 the ratio of amount of water vapor actually present in air to the maximum amount of water vapor the air can hold with the same temperature is called okay so देखो एटा गोटे जिनिस कोन रेशियो पचाछि मने रखि ता रेशियो सब बेले रिलेटिव हो तो आंसर हैला कोन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कोन ना गोटे मास ऑफ वाटर रे हला एडी थिबो हमरो माने मनकर 100,000 ग्राम रो वाटर रे 1000 ग्राम रो एटमॉस्फियर रे केते रहुची तमरो वाटर वेपर बा वाटर तो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हला कोन ना सेम जिंस बट केते रही परियो ये हला हाईएस्ट केते रही परियो ए केते हमर अछि हला दिस इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट कोन जेतोला 100% हे जिवो ताहले से वाटर टा हां जेतोला 100% हे जिवो से वाटर टा कोन हबो ना ठंडा जेतोला कोल्ड केस ओनली कोल्ड केस ड्यू पॉइंट आसे से कोन करिवो ना एटमॉस्फियर रे होल्ड करि परिवो नाही से पळेबो हला तो दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट actual present la absolute yes katabatic winds are wind that flows katabatic ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି anabatic ଦିଟା ଅଛି କିଏ କହି ପାରିବ କୋନ ओके ये बहे राति रे जोटा कि तमे कहो माउंटेन विंड और वैली विंड हला तो जेतबेले ऊपर एयर रे प्लाटू रो एयर ठंडा हे जाय ठंडा एयर ओजन हेकिना खसिबो हला बा माउंटेन रो ऊपर ठंडा एयर ओजन हेकिना खसिबो आगु कहंती कोन काटाबाटिक विंड्स हला आउ आउ तळु ऊपर को जेतबेले आसीबो तळ एयर टा गरम हे गला ऊपर को गला दिस इज कॉल्ड anabatic wind काटाबाटिक विंड टा राति रे जाय हला दिस इज माउंटेन टू वैली आ काटाबाटिक विंड कोन करे जानछो हमरो ओडिसा रे गोटे जगह रे काटाबाटिक विंड जो डेंजर हुए डेंजर इन द सेंस माने गोटे तमे जानि परिबो काटाबाटिक विंड दैट इज योर दारिंगी विंड माउंटेन ऊपर ठंडा पवन शीत दिन ठंडा पवन माउंटेन ऊपर तळକୁ जाए
ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ କଣ କରେ ନା ଫ୍ରଷ୍ଟିଂ କରେ, ଫ୍ରଷ୍ଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ତଳେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲି ଅଛି ସେଠି ହୁଏ କଣ ନା ଫ୍ରଷ୍ଟିଂ ହୁଏ, ବା ତମର ବା ସ୍ଲୋପ ରେ ଫ୍ରଷ୍ଟିଂ ହୁଏ। ଫ୍ରଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ତା ଅର୍ଥ କଣ ହୁଏ ନା ବରଫ ଜମେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ନା ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ସ୍ନୋଫଲ ହୁଏ, କେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ସ୍ନୋଫଲ ହୁଏନି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଫ୍ରଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ହେଲା। Yes, very good, Akash. Next is the lowest part of the atmosphere. Sorry, 30 seconds social ଲାଗିଲାଣି ଖରାପ। Okay, the lowest part of the atmosphere characterized by significant weather activity and the presence of environmental lapse rate. ଅତି ସହଜ ଜିନିଷ କଣ ଆନ୍ସର? Yes, ଆନ୍ସର ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। Troposphere ସବୁ ପ୍ରକାର weather phenomenon ଆ ଭିତରେ ହୁଏ। Okay, next question. The phenomenon where incoming solar radiation passes through the atmosphere but outgoing terrestrial radiation is trapped by atmosphere gases is known as, କିଏ କହିପାରିବ? Yes, greenhouse effect। କଣ ହୁଏ? ସିମ୍ପଲ ଦେଖ, सन ରୁ ପୃଥିବୀ କୁ ତିନିଟା ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଆସେ। ଓଜୋନ ଲେୟର ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଭିଜିବଲ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍। ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଇଏ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଭିଜିବଲ ଲାଇଟ୍ କ୍ରସ୍ କରି ପଳାଏ। ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଭଲେନ୍ଥ ଅଧିକ, ମାନେ ସେ ଏତେ ଚଉଡା ହେଇନା ଏମିତି ପଡିବ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପଡି ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କଣ କରିବ ନା ଆକୁ ଯିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ। ସେଥିଲାଗି ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ। ରାତିରେ ଏଇଟା ଅଧିକ ହୁଏ କାରଣ ହିଟ୍ ଟା ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଯାଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେନି। ଆମର ଜେନେରାଲି ପୃଥିବୀରେ ଲାଇଫ ସମ୍ଭବ କାରଣ ସେଇଟା। ମାର୍ସରେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଅଛି, ବଟ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରଟା ଅଧିକ ମୋଟା, ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ମୋଟା ନୁହେଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା କଣ ହୁଏ ନା ଦିନ ବେଳା ତ ଗରମ ହୁଏ, ରାତିରେ ଟେମ୍ପରେଚର -40 ଡିଗ୍ରୀ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ହୁଏ? କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ସନର ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଦିନ ବେଳେ ଗରମ କରେ, ରାତିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡିଏଟ୍ ହେଇ ପଳାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ହୁଏନି, ସନରେ ଆମର ଲାଇଫ ସମ୍ଭବ। ଓକେ, what type of rainfall is common in the equatorial region due to intense insolation and rapid vertical air movement? এটা ଏବେ କହିଥିଲି କୋଉ କି ରେନର କହନ୍ତି, ଏବେ କହିଥିଲି। ତିନି ପ୍ରକାର ରେନଫଲ୍ ଅଛି ବେସିକ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଓରୋଗ୍ରାଫିକ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କନଭେନସନାଲ। ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ସମାନ, ଠିକ ଅଛି। ଓରୋଗ୍ରାଫିକ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ୱିଣ୍ଡ ଆସିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ବର୍ଷା କରେଇବ, ଏଠି କ୍ରସ୍ କରିଲେ ଏଠି ବର୍ଷା କରେଇବ ନାହିଁ ବା କମିଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତମର ୱିଣ୍ଡ ଯେପଟ ଆସୁଥିଲେ କୁହନ୍ତି ୱିଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ସାଇଡ, ଏଠି ୱିଣ୍ଡ ପଳାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲିୱାର୍ଡ ସାଇଡ, ବା ଆକୁ କହନ୍ତି ରେନ୍ ରିଚ୍ ଜୋନ୍, ଆକୁ କହନ୍ତି ରେନ୍ ସ୍ୟାଡୋ ଜୋନ୍ ହେଲା। ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ରେନ୍ କଣ? ସାଇକ୍ଲୋନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସାଇକ୍ଲୋନ ର ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଇଏରେ ସେ କିଛି କିଛି କ୍ଲାଉଡ ଛାଡିବ, ସେଠି ବର୍ଷା ସେ କରେଇବ, ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ। ଆଉ କନଭେନସନାଲ ରେନ୍ କଣ? ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗରମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏଠି ଆସିବ, ଭେପର ଗରମ କରିବ, ଥଣ୍ଡା କରିକିନା ବର୍ଷା କରିବ। ଇଏ ହୁଏ କୋଉଠି? କହିଥିଲି ତମକୁ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜନରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଓରୋଗ୍ରାଫିକ ରେନଫଲ୍ ଦେଖାଯାଏ। ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ କଣ କହିଲ? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲିୱାର୍ଡ ସାଇଡ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି। ୟେସ୍, ନଟ୍ ଲିୱାର୍ଡ ସାଇଡ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାରାଲାଲି ମୁଭ କରେ, ମାଉଣ୍ଟେନ ବାଡେଇ ହେବେ ନାହିଁ ସେଠି, ସେଠି ୱିଣ୍ଡୱାର୍ଡ ଲିୱାର୍ଡ ଜମା ଆସିବନି। ଲିୱାର୍ଡ ସାଇଡ କୋଉଠି କହିପାରିବ? ତମେ ଯଦି କହିପାରିବ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଆରପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ଥାନେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଥାନେରେ ବର୍ଷା ହଉନି। କିମ୍ବା ଏପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜୋନ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଏ ଅଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆରପଟ ସାଇଡରେ ରାୟଲସୀମା ଅଛି, ରାୟଲସୀମା ପ୍ଲାଟୁ, ସେଠି ବର୍ଷା ହଉନି। ଏପଟ ସାଇଡରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେଠି ବର୍ଷା ହଉଛି, ପାହାଡ କ୍ରସ୍ କରି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେଠି ବର୍ଷା ହଉନି। These are the example of the orographic rainfall. Okay. Doldrums also, it is a good question. Doldrum, বা also known as ITCZ, ଆକୁ କହନ୍ତି କଣ? ITCZ বা ଆକୁ, this is Spanish word, this is called area of calm। ଆନ୍ସର କଣ?
लो प्रेशर एंड काम विंड्स यस तो एटा कोन होय म कहि दोची इक्वेटर रु मनकर 0 डिग्री इक्वेटर सेटू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ आको कहନ୍ତି तमरा डोल्ड्रम जोन ओके दिस इज योर डोल्ड्रम बा आईटीसी एटी कौन हुए ना लो प्रेशर क्रिएट हुए कारण वर्ष सारा सूर्यर डायरेक्ट टेम्परेचर पड़े तो पाखापाखि एवरेज टेम्परेचर एटी 35 डिग्री रु 45 डिग्री पर्यंत हुए हला बा 35 डिग्री अराउंड 45 तो बहुत हेगला 35 डिग्री हेगला एउटु कौन होबो ना लो प्रेशर जतरा हितले कि कौन क्रिएट लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुए लो प्रेशर बेल्ट रे तमरो एयर ऊपर को उठिकिना ए आखा पाखरे पाखापाखि 30 डिग्री पाखरे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो अराउंड 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस पाखरे नॉर्थ हेमिस्फीयर रे भी और साउथ हेमिस्फीयर रे भी हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो तो आकु कहंती कोन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर तमरा विंड फ्लो करे विंड ता सब बळे मनकर जानि था तेछे किना फ्लो करी हला तेछे ना फ्लो करे बट एई जगह रो विंड आउ जाई परिबो नै क्रॉस करे नाही विंड सब बळे एठी रहइबो विंड आउ जमा जिवो नाही विंड कोन करे एठी तमरा अराउंड पुनी मूव हो बा अपर एटमॉस्फेयर को पड़े तो सेतले कहंती कोन ना एरिया ऑफ काम आल्सो नोन एज डोल्ड्रम ओके ओके इक्वेटोरियल जोन रे हुए डोल्डन्स इक्वेटर रे हुए हां मानन हुए एटा इक्वेटर रे हबो अलगा जगह रे हे करी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाउड सीडिंग इन इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन भाई तो एबे बहुत इनफेमस है क्लाउड सीडिंग दिल्ली रे हमर बीजेपी गवर्नमेंट कहला जे क्लाउड सीडिंग रे वर्षा करेबी तापर देखिथिबो जर्नलिस्ट माने सब एरिया बुली बुली कहले कोठी वर्षा ହେଇଛି क्लाउड सीडिंग पे क्लाउड थोड़ा दरकार दिल्ली रे क्लाउड नहीं तमे कह वर्षा करे क्लाउड रे माने वाटर वेपर थोड़ा दरकार वाटर वेपर नहीं कह वर्षा करे होबो की तो मन रखता क्लाउड रे वाटर माने क्लाउड जनरली डेजर्ट मान राजस्थान खास कोन एटा हे परिबो आउ कतार आउ साउदी अरब जाकर मते एटा करूछंती कोन करूछंती ना क्लाउड रे जाई कि ना सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस मिसै दोछन जा द्वारा कि जो वाटर वेपर गुड़ा अछि तार वेट बढ़ी जाउछि वेट बढ़िया द्वारा से कोन कुछ वर्षा रे कन्वर्ट हे जाउछि हला तो आंसर इज वेरी गुड बी के देतला सुभांशु शक्ति हला दिस इज बी वेरी गुड आकुजबा isotherm on a map contains places having equal ना आरो जानि पार दथु आ पूर्व रे पढैतिली एबे हला isotherm आइसो माने इक्वल कोन इक्वल अछि थर्म रो कोन टेम्परेचर यस थर्म जानो थर्मल थर्मल माने कोन टेम्परेचर ठीक अछि ड्राई आइस माने CO2 यस ड्राई आइस CO2 CO2 को ये करिया पड़े CO2 आ केतना जगह रे आई गेस नाइट्रस ऑक्साइड ना कोन समथिंग ड्राई आइस CO2 तो ड्राई आइस सुनी छी जोटा हमर कोन कहंती हॉस्पिटल यूज करंती केटा जगह नाइट्रोजन रो कोन मिक्सचर टा यूज करंती सो आई एम नॉट श्योर देखिया ओके बट सिल्वर आयोडाइड मु सुनी छी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्स दैट ऑलवेज acts perpendicular to the direction of the motion of a fluid like air on water and zero at equator कौन एटा कहंती एटा तो बारंबार कहछि यस कोरिलेशन फोर्सेस एंड मूव करिवो इक्वेटर रे जीरो ठीक अछि 39 नंबर क्वेश्चन जो जेट स्ट्रीम आ फास्ट फ्लोइंग नैरो meandering एयर करंट मन रखता दी प्रकार जेट स्ट्रीम अछि गोटे हला सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम गोटे हला पोलर जेट स्ट्रीम अर्थ रो ये पाखापाखि 20 डिग्री रु 30 डिग्री गोटे जाए 60 डिग्री रु 80 डिग्री हला एमिति एमिति एटा meandering हुए 60 डिग्री रु 80 डिग्री बट जिंस वाला कोन ये सब बेले मन रखिता वेस्ट रु ईस्ट को जाए सब जिंस वेस्ट रु ईस्ट को जाए सेतले के कोन कोन वेस्टर्न लुज आ ये कोन इट इज ए अपर एटमॉस्फेरिक विंड तो एटा कोठी मिले देखिया आपको के कहि परिबो अपर ट्रोपोस्फियर वेरी गुड आंसर इज अपर ट्रोपोस्फियर के लिए कहलो कृष्णा शक्ति मधु ओके दिस इज अपर एटमॉस्फियर आ कुछ बा बुझी पालो कि अच्छा बुझी होची ने क्लास अंडरस्टैंडिंग लागु छी मु टिके फास्ट करछु मु एते फास्ट करेनी बट फास्ट करूची टाइम कांस्टेंट अछि 10 टा उठे ही गलानी तो टाइम रो सारियर अछि
ହେଲା 42 ଟା क्वेश्चन ଅଛି 39% पहुंची गले आ दो तीन टा क्वेश्चन अछि ओके yes sir thank you very much air that completely saturated with water vapor is said to have reached its कहि दियो ଏବେ କହିଥିଲି କି ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ରିଲେଟିଭ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଟା 100% ହେଇଗଲା କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ରେ କଣ ହବ ୱାର୍ମ କ୍ଲାଇମେଟ ରେ କମ ୱାର୍ମ क्लाइमेट रे 100% ହବା ଚାନ୍ସେस ଟିକେ କମ ହେଇଯାଏ ହେଲା କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ହେଇଯାଏ ସିମ୍ପଲ କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାइमेଟ ରେ ବା କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ର वाटर कैपेसिटी माने ये कैप्चरिंग कैपेसिटी टा अधिक सिंपली पुट कले कोन बुझिलो म कहि दउछ ड्यू पॉइंट इज करेक्ट ओके सो टेम्परेचर तमे गोटे जगह रे गोटे ग्लास रे पानी रखिछ चीनी मिसेई चलो ताको गरम कर दो जेते गरम करि जिवो सेते अधिक चीनी मिसि चलथियो हला बट ठंडा पानी रे चीनी मिसा गोटे चामच चीनी मिसि जिवो ता अर्थ कौन जिते ठंडा हम तार वाटर कैपेसिटी माने ये माने एटमॉस्फेयर कथा कहले जिते ठंडा हम ताकू तार कैरिंग कौन कहते वेपर कैरिंग कैपेसिटी सेते कमी छ तो ठंडा एयर रे वाटर वेपर कैपेसिटी बा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो 100% हे जिवो से कौन हो ड्यू आकार रे बा काकर आकार रे पड़ी जिवो दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ठीक अछि आकु जिबा यस व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% ला सुन ओके नारा ଟିକେ ଲାଗିଲା ତ टेक्स्ट पीपीटी ଟା करेक्ट ଗୋଟେ करना छाड़ मतलब एवरेज सैलिनिटी द ओशन मन रखता ये वार्ड टा मन रखता सब बड़े 35 पीपीटी ही हो 35 पीपीटी ही रहइबो सब बड़े ओशन रो ता अर्थ कोन पार्ट्स पर 1000 माने प्रति 1000 ग्राम ऑफ वाटर रे 35 ग्राम तमरो सॉल्ट रही सैलिनिटी वाला चैप्टर अछि पढिथियो जदी यू नो ओके बाय द वे मु मोर पेड क्लास रे ओशेनोग्राफी नेक्स्ट पढिया जाउची जो माने ओशन रिलेटेड कोई डाउट्स अछि जदि किछ क्लियर करिया चाहछो क्लास मध्ये जॉइन पे देख ओके नेक्स्ट इज 42 the deepest part of the ocean floor often associated with the convergence plate boundaries also known as what is it known କହିଥିଲି deepest part trench yes very good oceanic trenches ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଇନଫେମସ ସବୁଠୁ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଲା କଣ ମାରିନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଓସେନ ଭିତରେ ଅଛି ମାରିନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି 11.033 କିଲୋମିଟର ମିଟର ତାର ସବୁଠୁ ଡିପେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଡିପ୍ ମାନବ ସମାଜର ମାନବ ହିଷ୍ଟ୍ରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାଇଛି ସେ ଭିତରେ ଯାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟର ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନ टाइटैनिक ର डायरेक्टर ହେଲା that is the marina trench and the challenger deep मन भाबता जणे ही लोक ଯାଇଛି ओके तो दिस इज ओशनिक ट्रेंचेस आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर जति बहुत फास्ट आज कली एते फास्ट करिया କଥା ना बट कर देली कारण टे क्लास इंटरेस्टिंग लागो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करछे तो आमे क्वेश्चन अच्छा ए फॉर्मेट टा भलो लागुची कि नाही मु क्वेश्चन डिस्कशन करिया सहित ता रिलेटेड मध्ये किछि जिंस तो मु प्रति जिंस ऑप्शन रिलेटेड किछि डाटा दउची आउ प्रोबेबल क्वेश्चन मध्ये कहूची इज इट गुड और नॉट एटा करिबा कि नाही को टाइम होनी क्वेश्चन बनिया टे टाइम लागुची एक्चुअली से जिंस पई ही ये रहउची अदरवाइज आई विल note it down before okay so yes sir very useful sir most lagila okay thank you uh give a second okay so really we'll continue again so hopefully ଆମର ଛୁଟି ଦିନ ମାନକେ ଟିକେ ମତେ ଟାଇମ ମିଳୁଛି ତ ସେଠି କଲେଜ ଯିବ ଆର ପିଡିଏଫ ମିଳିବ କି ଆଚ୍ଛା ଆର ପିଡିଏଫ ଟା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ नो ପିଡିଏଫ ଟା ସାର୍ ଆଭେଲେବଲ କରିବେ କି ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବା ସାର୍ କହୁଛି within 1 to 2 days ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଟ୍ କରିକିନା ସେଥିରେ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ବେଟର ହବ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ କମ ସେ କମ ତ ପିଡିଏଫ ତ ମିଳିବ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ ହଉ ଓକେ ଦେଇଦବା ଟିକେ ଓକେ we'll try so ଆଉ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି you can ask ସେଟଅପ ସବୁ ବଢିଆ ଅଛି ସାର୍ ଭଲ ସେଟଅପ
ओके, थैंक यू, थैंक यू। ରାତି 10ଟାରେ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖୁଛୁ, ଆଇ ଗେସ୍ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ରାତି 10ଟାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସେଟଅପ୍ କଥା କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା। ଓ ମୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସେଟଅପ୍, ଓକେ। ହଁ, କରାହେଇଛି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ହିଁ, ବେସିକଲି ଦିସ୍ ଫର୍ କ୍ଲାसेସ୍, କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଅଧିକ ନେଇପାରୁନି, ତ ସେଥିଲାଗି ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ମୋଡିଫାଇ କରିବାର ଅଛି, ବଟ୍ କରି ହଉନି, ଟାଇମ୍ ହଉନି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୟୋର ଟାଇମ୍। ଆଜି ଲେଟ୍ରେ କଲେ, 9ଟା ବେଳେ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହଉ କିମ୍ବା 4ଟା ପାଖାପାଖି, 4ଟା 5ଟା ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିମ୍ବା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆମେ ସଣ୍ଡେ କି ସାଟରଡେ ଯୋଉଦିନ ଛୁଟି ଥିବ, ଛୁଟି ଦିନରେ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ କିଛି ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ 40-45 ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକିନା କରିବା, ଏମିତିଆ ସ୍ପିଡରେ ରହିବ, ଏମିତିଆ ଫର୍ମାଟରେ ରହିବ। ଓକେ, so have a nice night, have a nice day, have a nice night, and